Hello students, myself Rakesh Misra. This is important revisional video for class 10th students. Here I am going to describe you the revision of heredity and evolution chapter. It is part 2 video. In previous video lecture you have learned the MCQs number from 1 to 8 and you revised thoroughly. If you have any doubt or problems, then you make the list of that doubts and I will probably clear them in the live classes or in the comment box. Actually the question are the collection of MCQs, fill in the blanks, true, false, assertion and reasons from heredity and evolution chapter. From session 2020-21, the portion of evolution is no more in the syllabus. So here from the previous video and in this video you will get only the question from the heredity and their related concepts, that is the Mendel's law, sex determination, genetics and many more. So many students probably may able to ask the question from evolution or may able to confuse from the concepts of evolution. So let I give you the idea that you cannot recognize whatever the important concepts of evolution and heredity, but you should make sure that what are the concepts of heredity and what are the concepts of evolution. That is, you should separate out the question from heredity and evolution, and you should only learn to the concepts of heredity. In this video lecture and previous video lecture, only the concepts of heredity is available and their questions is available. I left the more about the thinking of evolution chapter. So evolution probably will not ask in the examination. You should make your concept only on the heredity topic, heredity chapter. So overall lesson is based on the heredity and their concepts. Now in this video lecture I will cover the concepts of the question number 9 onward. In previous video you have learned the question number 1 to 8. Now back to question number 9 of MCQs. Now question number 9. In previous video lecture you have learned the question number 1, 2, 3, the question number 4, question number 5, question number 6, question number 7 and question number 8. The last question of previous video lecture was the question number 8 and all about the concept of question number 8 is clear. एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, ये फुल मार्क्स 5 मार्क्स में, और एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देगा, सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा तो ये 3 मार्क्स में पूछेगा. ये ऑप्शन ये तब देगा जब आपको कॉन्सेप्ट्स में कन्फ्यूजन होगी, यानी कि आपको सिर्फ जो है MCQs से, जितने भी MCQs हैं उससे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स को ही बाहर करना है, ठीक है. और कॉन्सेप्ट्स अगर आपका क्लियर है तो आप 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सब क्वेश्चन. तो पहले मैं क्या करूँगा कि चैप्टर 4 से, ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आवर इन्वायरमेंट से. आवर इन्वायरमेंट से मैंने MCQs, ट्रू फॉल्स, मैंने कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दिया था. उसके बाद आप हेरिडिटी चैप्टर से, इवोल्यूशन तो नहीं रह गया, इसके बाद रिप्रोडक्शन से और लास्ट में लाइफ प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, ठीक है. ये 4 चैप्टर पढ़ के आपको एग्ज़ाम देने हैं और आई होप आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक जो नेचुरल रिसोर्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं वो क्या होगा, पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा. नेचुरल रिसोर्स जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम में उसको असेस्ट किया जाएगा, तो उसको हम तब टच करेंगे जब ये पूरा रिवाइज हो जाएगा. नेचुरल रिसोर्स आसान है, 1-2 वीक में ख़त्म हो जाने वाला चैप्टर है, तो इसको तब टच किया जाएगा जब ये पूरा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स का फाइनल एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं. फाइनल एग्ज़ाम में आवर इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस ही असिस्ट किया जाएगा, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, ठीक. क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इन ह्यूमन इफ जीन बी गिव्स ब्राउन आई. थोड़ा सा इसको जूम आउट जूम इन कर दें ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन ह्यूमन इफ जीन बी गिव्स ब्राउन आई. यहाँ पे ये देखना कि बी क्या है, कैपिटल में लिखा है, ठीक है. बी मीन्स क्या दिया है, ब्राउन. ब्राउन कैसा, ब्राउन आई,
कैपिटल बी दिया, एंड जीन स्मॉल बी गिव्स ब्लू आई, यानी कि जो स्मॉल बी है, ठीक है, उससे कौन सा कलर बन रहा है, उससे ब्लू आई बन रहा है। What will be the color of eyes of the person having combination, यानी दोनों जीन अगर कंबाइन कर जाए तो क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसका कलर पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ कैपिटल बी का मतलब जब दे दिया है डोमिनेंट, भाई कैपिटल बी का मतलब ब्राउन दे दिया है, यानी डोमिनेंट का मतलब जब ब्राउन दे दिया है, तो ये पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि पूरा जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होता है सिर्फ एक ही जीन्स से, एक ही जीन्स पे डिपेंड करता है। सो ये सिंगल जीन्स कैपिटल बी इज इनफ टू फॉर्म द ब्राउन आई कलर, दैट इज ब्राउन आई कलर इन नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज इन जनरेशन 1, ठीक है। और इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अभी आपके पास जो है ऑप्शन है नीचे, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अगर कैपिटल बी का होगा, देखो यहाँ ऑप्शन जो है कुछ दूसरा दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है कि इसमें से अगर ये ऑप्शन है, यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी, ये कंडीशन है चाहे ये कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में आई का कलर कैसा होगा। तो अगर कैपिटल बी एक ही जीन्स है, कैपिटल बी है और बाकी स्मॉल है, तो आप जानते हैं कि सिंगल जीन इज इनफ होगा। तो इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन। बट यहाँ पे दोनों कैपिटल है तो इसका दोनों जो है कैपिटल है, तो एक ही जीन कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसका दोनों कैपिटल है तो इसको ब्राउन होगा ही, ये क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो यानी कि फर्स्ट भी ब्राउन और सेकंड भी ब्राउन, ठीक है। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट ब्लू सेकंड ब्राउन, स्टेटमेंट गलत। अब अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, अगला दे दिया है फर्स्ट ब्राउन सेकंड ब्लू, ये भी गलत। थर्ड क्या दिया है, फर्स्ट ब्राउन सेकंड ब्राउन, ये सही है, यानी ऑप्शन सी सही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है, नोट डाउन कर लीजिए। और आपको कॉपी में इसका क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन। इसको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप कॉपी में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से लिख देंगे पूरा बढ़िया से, चारों MCQs लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर लिखने के बाद जो है उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे उसको मैं बता दे रहा हूँ, लिसन केयरफुली, अच्छे से समझे। एज वी नो दैट इन द गिवन पोर्शन द कैपिटल बी इज कैरेक्टराइज्ड बाई हैविंग द कलर ऑफ आई, दैट मीन्स द ब्राउन, while the small b is the characteristics of blue eye color. As we know that small letter of genes represent the recessive characters and capital letter of genes represent the dominant letters. So, as per the given option, capital B small b will be the dominant, will follow the dominant characters brown, and capital B will absolutely follow the dominant characters. You need to explain why capital B small b follow the dominant characters. As we know that as per Mendel's first law, as per Mendel's first law, single gene is enough to form the dominant characters. So single genes capital B is enough to form the dominant character, that is the brown character. So we can recognize the overall answer in your own language, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे दिया है, अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल रिजल्ट इन अ रेशियो 9:3:3:1 फॉर 4 पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ प्रोजिनी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाया गया है, ठीक है, दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाया गया है, उनके बीच जो पॉसिबल फिनोटिपिक रेशियो आया ना, वो आया है 9:3:3:1 का। और पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शन दे दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, ऑप्शन बी दे दिया है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ऑप्शन सी दे दिया टेस्ट क्रॉस का, ऑप्शन डी दे दिया F1 जनरेशन का। तो ये पूरा जो है डाई हाइब्रिड खेला है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का ही कमाल है। मेंडल अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, मेंडल ऑन हिज सेकेंड एक्सपेरिमेंट टेक द round yellow and wrinkled green seed and
wrinkled green seeded plants. Mendel on his second experiment take the round yellow seeded plants and wrinkled green seeded plants and cross the round yellow seeded plants with the wrinkled green seeded plants and find all plants in next generation was round yellow seeded. And after getting the self cross in F1, he find the ratio among round yellow, round green, wrinkled green as 9:3:3:1. That was actually the डाई हाइब्रिड क्रॉस. जब एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को केयर करके अगर क्रॉस करवाया गया तो उसको मोनो हाइब्रिड, सिर्फ राउंड यानी सीड को ही, सीड के शेप को ही अगर केयर करके क्रॉस करवाया गया होता तो ये मोनो हाइब्रिड होता. लेकिन यहाँ पे सीड का शेप भी और सीड का कलर भी, ये दोनों केयर किया गया था, दोनों को चेक किया गया था अगले जनरेशन में, इसीलिए ये कौन सा क्रॉस हो गया, डाई हाइब्रिड. आई थिंक आपका 10 पूरी तरह से क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें. नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. लिसन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड. पूछ रहा है इसमें से कौन सा कैरेक्टर्स एक्वायर्ड है लेकिन इनहेरिटेड नहीं है. एक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स दोनों समझ रहे हो ना. जैसे कोई पेरेंट्स है, ये कोई पेरेंट्स है, इनका कोई कैरेक्टर्स, जैसे मान लो कि इनके बॉडी का कलर, ठीक है, ब्लैक है, या इनके बॉडी का कलर वाइट है, इनके आई का कलर, हेयर का कलर, कोई भी कलर, कोई भी इसके बॉडी में ऐसे फीचर्स जो अगले इनके बच्चों में दिख रहा है तो उसको बोलेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. ठीक है. तो कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो बच्चे में दिखते हैं लेकिन मम्मी पापा में नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. सो कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एंड कैरेक्टर्स दैट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. अब इस बेस पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि इसमें से एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को ही छांटना है, कौन कौन से इनहेरिटेड कैरेक्टर्स नहीं हैं उसको अलग कर देना है. ठीक है. तो इसमें से कौन कौन से पहले इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है इसको अगर जान जाएंगे तो कौन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स उसको मैं बता सकता हूँ. ठीक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ. तो पहला ऑप्शन क्या है, कलर ऑफ स्किन. तो जो बॉडी के कलर का, स्किन का कलर है ना, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है. मम्मी पापा गोरे, बच्चा काला नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है. साइज ऑफ बॉडी, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है. ये हाइट ऑफ बॉडी अगर रहता, हाइट ऑफ बॉडी रहता तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स रहता. लेकिन बॉडी की जो साइज है ना, बॉडी कितना मोटा तगड़ा, शेप कितना अच्छा बन रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसका खान पान कैसा है, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, जिम उसका कैसा है. ठीक है, तो ये साइज ऑफ बॉडी जो है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है. बाकी आई कलर भी, ये क्या है, आई का कलर ब्लू ब्राउन जैसा भी रहता है वो बच्चों में चला जाता है. तो आई का कलर जो है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं है, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है. टेक्सचर ऑफ हेयर, टेक्सचर ऑफ हेयर क्या होता है, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के बाल सफ़ेद किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं. तो घुंघराला बाल अगर पेरेंट्स में से किसी का है तो अगले जनरेशन में बच्चों में से किसी भी बच्चे के बाल घुंघराले हो सकते हैं या सबके हो सकते हैं घुंघराले बाल. तो ये टेक्सचर ऑफ कलर, आई कलर और स्किन कलर, ये सब क्या है, ये जो है ये सब हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. बट साइज ऑफ द बॉडी ये क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है. तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी. क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी. साइज ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी इज द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, वाइल द कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ टेक्सचर ऑफ हेयर ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है. तो आप अपने एक्सप्लेनेशन में इसको लिख डालेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन में. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो जेनेटिक वेरिएशन को बता रहा है. वन पर्सन हैज स्कर्स बट हिज फ्रेंड डू नॉट. कह रहा है कि एक पर्सन का के शरीर पे स्कर्स है, दूसरे फ्रेंड्स का
स्कर्स नहीं तो फ्रेंड्स से क्या मतलब है? फ्रेंड्स दूसरे पेरेंट्स से भी तो आ सकता है। एक पेरेंट से एक आदमी आ रहा है, दूसरे पेरेंट से दूसरा आदमी आ रहा है, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो इनमें वेरिएशन है, तो इसका क्या मतलब? ये जेनेटिक वेरिएशन थोड़ा ना। अब आपकी बॉडी का कलर जो है, आपकी हाइट जो है छोटी है, खली का हाइट बहुत बड़ा है, तो ये जेनेटिक वेरिएशन थोड़ा ना। उनके मम्मी पापा कोई और है, तुम्हारे मम्मी पापा कोई और होगी, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये आंसर नहीं है, पहला आंसर नहीं है। सेकेंड क्या कह रहा है? वन पर्सन इज ओल्डर देन अदर, कह रहा है एक आदमी बूढ़ा है और एक आदमी जो जवान है, तो जेनेटिक वेरिएशन है? नहीं, ये तो उसकी उम्र का इफेक्ट है ना। भाई इसका उम्र 50 साल हो गया, तुम्हारा उम्र 10 साल है, तो इसमें ये बोलेंगे कि इसका जेनेटिक कैरेक्टर्स है? नहीं, ये भी आंसर गलत है। रीता ईट्स मीट बट हर सिस्टर गीता इज वेजिटेरियन। एक लड़की, भाई एक ही माँ बाप की दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक रीता है और एक गीता है। रीता जो है ये मीट खाती है और ये मीट नहीं खाती है, यानी ये नॉन वेजिटेरियन है और ये क्या है? वेजिटेरियन है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन है? नहीं, ये तो इनके खान पान है ना। ये छोड़ देगी तो ये भी वेजिटेरियन हो जाएगी, ये खाने लगी तो नॉन वेजिटेरियन हो जाएगी, तो ये भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। अब जो बच गया वही जेनेटिक वेरिएशन है। द टू चिल्ड्रेन हैव डिफरेंट आई कलर आर एक्चुअली द characteristics of genetic variation, so your concept should be genetic variation, I think is clear। तो जेनेटिक वेरिएशन में दो ऑफस्प्रिंग ऐसे हैं जिनमें कुछ न कुछ बॉडी डिजाइन में चेंजेस है, और दोनों का कंडीशन ये होना चाहिए दोनों एक ही मम्मी पापा से आने चाहिए। अगर दोनों अलग अलग मम्मी पापा से आ रहे हैं तो ये जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ये कॉमेडी है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड एज वेरिएशन। ये तो स्टेटमेंट दे दिया ना, इसमें क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है कि ऑर्गेनिजम्स, एक पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनमें वेरिएशन जो है उसमें अगर डिफरेंस हो रहा है, उसकी स्पीसीज में डिफरेंस है, तो ये वेरिएशन बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू डिस्क्राइब एज कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन, इसमें से कौन जो एग्जाम्पल जो है कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन का है? ठीक है, तो हेयर कलर ये कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन का नहीं है, ये कॉमन वेरिएशन है। ठीक है, ये फिक्स वेरिएशन है। आई कलर ये भी फिक्स वेरिएशन है। जेंडर ये भी फिक्स वेरिएशन है। वेट ये चेंजेज आ सकते हैं, हो सकता है कि इसका वेट जो है 50 किलो, इसका वेट जो है 52 किलो, इसका 60 किलो, ये वेरिएशन आता रहता है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं है, लेकिन ये वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता रहता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लिसन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? टू स्टडी द नेचुरल फिनोमिनन ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट्स। कह रहा है कि मेंडल नेचुरल फिनोमिनन ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए क्या सेलेक्ट किए थे? पी प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेयर सूटेबल फॉर देयर स्टडीज। कह रहा है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी पी के लिए, पी की स्टडी के लिए सूटेबल है? पहला क्या है? प्लांट्स वुड ईजिली सेल्फ पॉलिनेट एंड क्रॉस पॉलिनेट इन नेचर। देखो प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स को वेट करना पड़ता है कि उसमें जो है उसमें एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर हो। अगर एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर होते हैं तभी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यानी प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल है, लेकिन ईजिली जो वर्ड लगा दिया है इसकी वजह से स्टेटमेंट गड़बड़ है, यानी कि ये पॉइंट 1 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? प्लांट्स वेयर इजिली ग्रो इन गार्डन विथ कंसिडरेबली द शॉर्टर जनरेशन टाइम। कह रहा है कि प्लांट्स आसानी से सॉइल में ग्रो किया जा सकता है, साथ में वो बहुत कम समय लेता है, तो स्टेटमेंट तो सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है। प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर द ट्रू ब्रीडिंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट्स जो है ट्रू ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, प्लांट्स के लिए ट्रू ब्रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है? मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज पॉड, सीड, फ्लावर, कॉटिलिडन शो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। सब में फिनोटाइप मिलता है, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ। देखो कुछ हद तक फर्स्ट भी सही है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ एक साथ किसी ऑप्शन में आए ही नहीं। देखो इसमें 1 2 3 आया है, इसमें सेकेंड थर्ड आया, इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड आया, इसमें
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आया, तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ किसी में आया नहीं, ये भी सही है, लेकिन ये इजीली वर्ड लगा के कंफ्यूज कर दिया। अगर एग्जाम में आ जाए और इस तरह का क्वेश्चन रहे, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ अगर कहीं पे लिखा रहे, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ कहीं लिखा है तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ वाला सही है, लेकिन इसमें कहीं भी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सेकेंड और फोर्थ आप क्लिक कर दीजिएगा। बाकी सारा आंसर जो है, बाकी फर्स्ट आंसर तो सही है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ कहीं है ही नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ किसी ऑप्शन में है ही नहीं एक साथ, ठीक है, तो इस वजह से इसको बी को आप सही मानेंगे। चलो, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही है। अब लास्ट है इस वीडियो लेक्चर का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ह्यूमन ऑफस्प्रिंग सेक्स इज डिटर्मिन्ड थ्रू फादर सेक्स क्रोमोजोम्स, थ्रू मदर सेक्स क्रोमोजोम्स, बाई हार्मोन्स, बाई एंजाइम। लिसन, अब ध्यान से सुनेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसको मैंने बताया था कि ह्यूमन मेल हैज़ 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स that able to produce two type of sperm, the sperm containing X chromosomes and sperm containing Y chromosomes, while the female produce only one type of sperm, that only one type of ova, that is X chromosomes, the ova containing X chromosomes only. So the sperm containing X chromosomes fuse with the ova, then there will be girl child, and sperm containing Y chromosomes fuse with the ova, then there will be boy child. So overall offspring's sex is determined by the father's sex chromosomes, not mother's sex chromosomes. So for question number 15 the answer A is correct. So I hope your question regarding the sex determination is clear. For this question the option A is correct. तो इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या मिला, क्वेश्चन नंबर 9 to 15 का रिकॉर्ड अच्छे से मिल गया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 1 to 8 का रिवीजन किए थे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इस वीडियो लेक्चर में 9 to 15 का रिवीजन किए थे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। इन दोनों वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में या लाइव क्लास में मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आई होप आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।